Hey, my little champions. So, did you miss me? I mean, I don't know about you people, but I definitely missed YouTube and the channel and you people. I really, really missed it. And I was like, oh my God, what has happened? Literally, because uh, it's not that we were not aware that Cyclone Amphan is going to hit West Bengal. And if you're not aware about me, then I live in Kolkata. And so, yeah, this was one of the place which was severely hit by Cyclone Amphan. And the picture you see here is not a picture from the news, it's a picture nearby my house. So you can understand the impact it had, and literally, it was a terrifying night. The night, I think, 21st. It was really terrifying. And I mean, I must say that I literally am not afraid in that manner so much, but I was afraid that day because that night basically, because it was different. I mean, it was different in the way that the sound it was making outside and the glasses shattering, and like it was intense. I mean, we never imagined it to be of that extent, and I think that is where kind of we failed, because and I consider one of like I am one of the person who literally took this casually. We should not. I mean, we study so much, we learn so many of things, but we still make the same mistakes. And I think I am the one who made the same mistake. Even if like we were aware that Cyclone Amphan is going to hit, even my mother told me that बेटा मैंने सुना है ऐसे ऐसे होने वाला है, एंड आई वाज लाइक वेरी चिल्ड कि हाँ हाँ ठीक है, ये तो हर साल ही होता है कोलकाता में, सो इट्स नॉट अ बिग थिंग टू वरी. But that was not the right thing to do. You should have like checked that, what is going to be the impact or something. And tragically क्या था कि I did not eat anything in the lunch that day, and I felt कि रात में I'll eat. That was my routine, that I eat breakfast and dinner. I do not eat lunch. So I felt कि ठीक है रात पे खा लेंगे. And रात में I like could not make the food because electricity was not there, and like people who I could approach to for like food, they were not accessible definitely, because we could not reach out of our rooms, we cannot move out of our rooms. And it was pathetic. I mean, it was the situation was pathetic. I was literally very hungry, and I literally had to feel like, oh my God, what did I do? I mean, अगर मुझे जरा सा भी मैंने सीरियसली लिया होता तो एटलीस्ट आई वुड हैव एट समथिंग. मैंने कुछ खा लिया होता शायद दिन में ही. बट मैंने सुबह खाया था, एंड आई एम पथेटिक एट लाइक हंगर. आई मीन, मुझे अगर एक बार भी भूख लग जाता है ना, तो वो स्निकर्स का ऐड हो जाए ना जैसे, कि तुझे भूख लगता है तो तू लड़की बन जाता है. सो आई एम दैट वन पर्सन. मुझे ज्यादा भूख लग जाए तो मैं पागल हो जाती हूँ. सो आई वॉज लिटरली गोइंग मैड कि ये क्या कर दिया मैंने. ठीक है, आप सोचो सिचुएशन कैसी है कि आपके बाहर में साइक्लोन चल रहा है भयानक स्पीड में. इट लिटरली वेंट अप टू 130 किलोमीटर्स पर आवर इन वेस्ट बंगाल. एंड 130 kilometers per hour is really bad, friends. You can check that. और आप सोचो कि वैसे ही चल रही है साइक्लोन, ग्लासेस शैटर हो रहे हैं, उसकी आवाजें आ रही है ऐसे छन करके, सारे शीशे टूट रहे हैं. एंड देन आपको भूख लगी हुई है, आपके फोन में नेटवर्क नहीं है, यू कांट टॉक टू एनीबडी, यू कैन नॉट वॉच एनीथिंग ऑन नेट, you cannot do anything with your phone basically. And my phone was also, बाप रे, in a bad state. I mean, मेरे फोन में प्रॉब्लम हो गई थी, वो बिना पावर बैंक या किसी भी लाइक पावर चार्ज के बिना नहीं चल सकता. सो बैटरी वाज लाइक इन अ बैड स्टेट. तो आई हैड ऑनेस्टली द पावर बैंक, लेकिन मुझे इतना पता चल गया था, इतना सेंस आई हैड कि आज के टाइम में राइट नाउ आई कैन नॉट डू एनीथिंग. बट अगर मुझे मैं फंस गई और मुझे कुछ हेल्प की जरूरत पड़ी, देन आई नीड दिस बैटरी बैकअप, एंड माई फोन विल नॉट हेल्प मी. आई नीड दिस पावर बैंक्स power to like connect to people in times of need. तो मैंने इसीलिए लास्ट में बिल्कुल फोन बंद करके पावर बैंक से निकाल कर कि अभी मुझे चाहिए नहीं, मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूँ आज के टाइम में. राइट नाउ नोबडी कैन कम एंड रेस्क्यू मी. बट अगर सुबह तक ये चीज कम हो गई एंड आई नीड टू बी रेस्क्यूड और आई नीड टू कॉन्टैक्ट समवन, तो मेरे पास तो फोन की बैटरी होनी चाहिए. सो आई लिटरली केप्ट द फोन. और बिल्कुल अंधेरे में, आप सोचो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है बाहर, वैसे डरावनी सी आवाजें आ रही हैं. एंड आई लिटरली फेल्ट कि
मैं कुछ और इमेजिन कर लेती हूँ सिचुएशन को, क्योंकि अगर मैं ये लिटरली मैं इस सिचुएशन के बारे में सोचूंगी देन आई पैनिक एंड इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प बिकॉज आई डू नॉट हैव एनीबडी, मैं अकेले रहती हूँ. सो आई वॉज लिटरली फीलिंग कि मेरे पास कोई इंसान नहीं है, सो आई नीड टू सपोर्ट माई सेल्फ मेंटली. तो मैंने ऐसा सोचा कि मैं जब घर जाती थी तो मैं घर भी ऐसे अकेले ट्रैवल करके जाती हूँ, तो मैं जब घर जाती थी तो मेरा बहुत एक सिंपल रूटीन होता है एंड आई रियली एंजॉय दैट. मैं ट्रेन पे ऐसे अपर वाला सीट लेती थी एंड वो मैं आराम से जाके वहाँ सो जाती हूँ. और मेरा एक फंडा होता है, या तो मैं गाने सुनती हूँ या तो फिर मैं सिंपली सो जाती हूँ, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ सोचते सोचते आई स्लीप. सो आई लिटरली फेल्ट कि दिस इज माई ट्रेन एंड आई एम गोइंग टू माई होम. और मैं उसी इमोशन के साथ आई वाज लाइक कि चलो अब सो जाओ, कुछ नहीं करना है तुम्हें, ठीक है. एंड आई लिटरली स्लेप्ट. मुझे लगा कि कुछ भी हो जाए सोना है. बट वेरी ऑनेस्टली ऐसे नींद तो नहीं आ रही थी, तो थोड़ा सा नींद होने के बाद भी आपकी आवाज आंखें तो खुल ही जाएंगी ना इतने भयानक इन्वायरमेंट में. बट एनी हाउ सुबह हुई एंड लाइक पीपल हु आर नियर बाय जो मेरी केयर करते हैं, दे केम एंड like saw me and then we had food. Literally that is the first thing which came to my mind when I was awake in the morning. I need food, man, I need food. I was so hungry. I was literally गोइंग मैड कि मुझे बस खाना चाहिए. और प्रॉब्लम ये है जो भी एक चीज मुझे लगा था कि एक और इशू जो मैंने सोचा, दैट वाज वन थिंग कि आई डू नॉट हैव एनी गैस कनेक्शन इन माय हाउस. आई हैड इंडक्शन, और आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी ही जब नहीं हो तो आपका फूड फिर खाना फिर बनेगा कैसे. तो मुझे लग रहा था कि मैं तो एकदम ही डेड एंड में फंस गई यार. मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मैं खाना बना नहीं सकती, मुझे भूख लगी, मैंने पिछले दिन से कुछ नहीं खाया है. So it was so terrifying and there was no network. तो मैं घर पे बात नहीं कर सकती थी. मम्मी ऑलरेडी बहुत वरिड थी. शाम में जाके आई थिंक थोड़ा नेटवर्क आया, वो भी बिल्कुल छत वत पर घूम कर. एंड देन लाइक वी कुड से आवर फैमिली दैट आई एम सेफ. आई एम लिटरली सेफ, कुछ नहीं हुआ है, इट्स ओके, इट्स फाइन. सो बेसिकली ये सारे एक्सपीरियंस से हम क्या सीखते हैं? आई मीन दैट इज द मॉरल ऑफ दिस होल एक्सपीरियंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी चीज, कोई भी अनाउंसमेंट हो या कोई भी वेदर वार्निंग्स हो, डू नॉट या बी नेग्लिजेंट टू इट. बी एन अलर्ट सिटीजन यू क्लेम टू बी. आप हम और आप हमेशा क्लेम करते हैं कि हम अवेयर हैं, हम अच्छे जानकार इंसान हैं, अच्छे सिटीजन हैं. बट आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी ब्रिंग दैट इनटू एक्शन. एल्स आप जितनी भी बातें कर ले, अगर आप उसे एक्शन में नहीं लाते तो इसका कोई फायदा नहीं है. एंड आई एम ब्लेमिंग माई सेल्फ फॉर दिस. आई डू नॉट डू दैट एंड आई डू नॉट अप्रिशिएट दैट एक्शन. आई टुक इट कैजुअली एंड वी शुड नॉट. ओके, आपको नहीं पता है वो रात आपके लाइफ का शायद आखिरी रात हो सकती है, बट इफ यू आर लाइक अवेयर तो आप शायद उसके लिए कुछ एक्शंस लेके रखे हो. एंड इट कैन बी एनीथिंग, मे बी इट कुड बी कि मैं फंस जाती यहाँ पे और शायद बहुत दिनों तक यहाँ पर कोई आ नहीं पाता मुझे रेस्क्यू करने, और इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं आती, तो मुझे खाने के लिए सामान वैसे कलेक्ट कर लेना चाहिए था कि कुछ ड्राई फूड टाइप का मेरे पास हो दैट आई कुड ईट. तो ये सब टाइप की चीजें, यू शुड हैव योर इमरजेंसी प्रिपरेशन रेडी एंड यू शुड बी अवेयर कि और क्या किया जा सकता है एट योर लेवल. तो दैट थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जस्ट डू नॉट थिंक ऑफ थिंग्स इन अ थियोरेटिकल वे. जब आप प्रैक्टिकली आपको कुछ करने का मौका मिलता है, डू दैट. बी एन एक्टिव सिटीजन, बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. सेकेंडली, लाइफ कभी भी गूगली फेंक सकती है. सो एंजॉय दैट गूगली, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है. बिकॉज लिटरली आप सोचो, अगर मैंने उस रात को बहुत ज्यादा सोचा होता, आई वुड हैव लिटरली पैनिक्ड. But I think I will appreciate there. I did not do well in, getting being aware about the cyclone, but I think I did well in the part of handling it because I kind of like maintained my mental peace when I should have, and I think that was
लाइक गुड थिंग टू डू, बिकॉज आप अगर लास्ट मोमेंट में ऐसे पैनिक कर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो आपसे गलतियां होने लगती हैं। मैं भी शायद कुछ कुछ करने लगती, फोन की सारी बैटरी खत्म कर देती कि यार गाने ही सुन के किसी तरह रात काट लेते हैं। बट वहां पे मैंने थोड़ी सी समझदारी दिखाई कि नहीं, फोन की बैटरी मन लगाने से ज्यादा जरूरी कामों में यूज आ सकती है। सो आई काइंड ऑफ एक्टेड स्मार्ट देयर, एंड यू शुड एज वेल। अगर आपको लगता है कभी भी कि दिस सिचुएशन इज जस्ट गोइंग आउट ऑफ योर हैंड्स, देन डू नॉट पैनिक, जस्ट थिंक प्रैक्टिकली कि व्हाट बेस्ट यू कैन डू हियर एंड कीप योर काम कूल। जो हम लोग बोलते हैं ना, बी द सुपर चिल पर्सन, वो आपको रहना होता है, बिकॉज वही चिल्ड पावर हैज इट्स ओन एडवांटेजेस। तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है, ओवर थिंक मत कीजिए। आप उस समय हंसी खुशी जैसे उस टाइम को काट सकते हैं, प्लीज काट लीजिए। और थर्ड थिंग जो मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है कि कभी भी लाइफ में अपने गोल्स के लिए, अपने काम के लिए, नेवर अंडर एस्टिमेट द स्मॉल प्रेशियस थिंग्स यू हैव इन योर लाइफ। एंड आई मीन बाय दैट योर पीपल। मैं कभी मटेरियलिस्टिक चीजों के बारे में बात नहीं करूंगी, बट ऑल अबाउट पीपल। इट्स लाइक अगर आपके पास जो अच्छे लोग हैं जिनसे आप बहुत क्लोज हैं, डू नॉट अंडर एस्टिमेट द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज पीपल इन योर लाइफ। दे आर रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। और आप जितनी भी मेहनत कर रहे हैं यूपीएससी के लिए या फिर अपने काम में कहीं कुछ अच्छा बनने के लिए, it is all worth it only if you have your people by your side in that process, and at the end of the process. Because actually these things matter. आप कितनी भी चीजें कर ले, लाइफ एंड डेथ आर सर्टेन। आप मतलब एक ना एक दिन आपकी जिंदगी भी खत्म होनी है। तो कहीं ना कहीं यही सारी चीजें इंपॉर्टेंट रह जाती हैं। ऑब्वियसली हम एक सिविल सर्वेंट क्यों बनना चाहते हैं? ताकि हम किसी और की मदद कर सके। लेकिन किसी और से पहले आपके पास जो लोग सबसे पहले आपकी जिंदगी में आए हैं, उनके लिए भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये चीज कभी ना भूले। आप बड़ा बनने की कोशिश में कभी उन छोटी चीजों को मत भूलिए, जो जिसके लिए आपको कोई मेडल नहीं मिलेगा, जिसके लिए आपको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको वो चीज को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में रखने की जरूरत है। एंड आई थिंक आई एम क्वाइट गुड इन दैट एज वेल। आई मीन मैं बहुत पीपल पर्सन मानती हूँ खुद को, एंड आई हैव ऑलवेज बीन दैट वे। एंड आई थिंक यू शुड बी एज वेल। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो इतने ज्यादा गोल सेंटर्ड हो जाते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, दैट दे फॉरगेट दोज पीपल। मैं घर नहीं जा पाती, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जो मैं रिग्रेट करती हूँ, बट आई एंश्योर कि आई टॉक टू माई पेरेंट्स एज मच एज पॉसिबल। और मेरे दोस्त हैं कुछ कुछ जो, मतलब उनको दोस्त कहना इंसल्ट होगा, दे आर लाइक फैमिली। सो वो लोग हों या मेरे पेरेंट्स हों या जो भी और अच्छे अच्छे लोग हैं मेरी जिंदगी में, आई रियली वैल्यू देम। I value each and every message they do to me, each and every call they do to me. I think that is very very important for me. मेरी priorities जो है ना लाइफ में एकदम सेट हैं। If anything comes from these people, that will be my first priority. Nothing comes before that. So I think that emotion, of having your priorities right is very important. I will not decide your priorities, you will decide it, but it should be keeping in mind the importance of that thing in your life. Like आपके लोग वही हैं जो कल को आप गिर जाओगे, कहीं आप कहीं हॉस्पिटल में होगे या आप कहीं भी आप बीमार हो जाओ, आप एकदम किसी काम के ना रहो, तो यही लोग होंगे शायद जो आपके बगल में आपसे प्यार से बातें कर रहे होंगे। अगर वैसा एक भी इंसान है आपकी जिंदगी में, तो वैल्यू दैट पर्सन बिफोर एनीथिंग, एनीथिंग इन योर लाइफ। तो इसीलिए मैं वो चीज बोलूंगी, आपकी जिंदगी में अगर कोई ऐसा एक भी इंसान है जो सेल्फलेसली आपके लिए काम करता है, जिसको कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए आपसे, उस इंसान को आप हमेशा अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में आगे रखिए। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ आपसे। बाकी लाइफ है, ये ऐसे गूगलीज आते रहते हैं, डिजास्टर्स होते रहेंगे, हमें पता नहीं है अगले सुबह हो ना हो। सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट we value, we treasure the life we have, and we treasure the moments we live here. And it's not that while UPSC preparation or any preparation you're wasting your time. Your life is all about gaining those experiences, gaining that knowledge. The knowledge you gain from the preparation is also an experience. So count that as an experience, count that as a memory, and
keep that also intact in your, you know, लाइफ, क्योंकि आप अगर हमेशा ये फील करते रहेंगे कि आपने अपनी जिंदगी बेकार बना ली इस चीज की वजह से, देन ऑब्वियसली विल नॉट ट्रेजर इट. बट इफ यू ट्रेजर इट इन अ वे दैट आई हैव लर्नड सो मच फ्रॉम दिस, आई हैव बिकम अ मोर कंपोज्ड पर्सन, आई हैव बिकम अ मोर sensitive person because I know the issues in the world. I know the social issues, I know the economic issues, I know the political issues. I can connect to people, I can connect to the actual issues in the administration which the officers have to face, and I can understand why one officer is not able to perform the best at some point of time because of resource crunch or something. You are aware of that, so that awareness is also an experience you're gaining from this preparation. So treasure that, treasure everything you do in this journey of life, because life should be treasured. Do not just live it like, you know, a burden of problems, worries, tensions. This is a gift you have, and treat it like a gift. So that was all I wanted to tell you all. Thank you so much for watching the video, and I will come up with the UPSC past year paper video soon. Bye bye.